Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we started with our first topic, that is Introduction to International Relations. Right? In that we studied about the introduction. इंट्रोडक्शन में क्या देखा, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, राइट. एंड द स्कोप ऑफ दिस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, it is complex and it is about the Soviet state of the world. It is concerned about many things. जैसे ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटेली ने क्या बोला है यहाँ पे कि बाबा ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल एनिमल है, वो अकेला रह नहीं सकता, राइट. किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ काम से क्या है, उसको एक दूसरे पे किसी ना किसी पे तो डिपेंड रहना ही पड़ता है, राइट. किसी ना किसी पे तो डिपेंड रहना ही है. तो उसी तरह स्टेट भी काम करता है. सी भले ही जैसे इंसान में आप किसी चीज़, इफ़ यू फुलफिल वन नीड द अदर नीड अराइज इन द ह्यूमन बीइंग, दैट्स द नेचर, राइट. और ये हर इंडिविजुअल में होता है. उसी तरह स्टेट भी है, राइट. स्टेट में भी नई कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है कंटिन्यूसली. भले ही आप बोल दो कि मेरा स्टेट सेल्फ सफिशिएंट है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली द स्टेट हैज़ टू डिपेंड ऑन द अदर स्टेट ऑल्सो. So this was the relations are the subject matter of international politics. Then moving towards the next point, that is the international politics. International politics as an academic discipline is of recent origin. Yes, और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, ये नया अभी आया है. इसका कुछ तो कुछ इम्पोर्टेंस रहेगा. जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, हर कोई ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन कर रहा है, इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस किया. क्योंकि ये सब अच्छे से काम करे नहीं करे, इसके लिए इंटरनेशनल एजेंसीज है, उनके पास कुछ पावर्स है, उनका स्ट्रक्चर्स है, वो अपन सीखे एंड वी गो ऑन दैट पाथ. दैट्स वाई दिस complete one subject has been introduced over here right now. Now moving towards the meaning. International politics is the way in which Soviet states interact with each other. International politics should not be confused with global politics, which incorporates the role of global interest groups and corporations in addition to governance. Now moving towards the next point, that is definition, right. ये definition से लेके ये डिफरेंस थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं वापस, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मेरे से मोबाइल में कुछ इशू हो गया था फ़ोटोज़ में, तो वी डिडंट सी दिस पेज. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. So I'll read out the definition. If you have any doubt, later you can mail me and I'll clear your doubts. See, first definition was about the Padelford and Lincoln's interaction of state policies within the changing pattern of power relationship are called international politics. Second one was Palmer and Parkins. International politics is essentially concerned with state system. Then Morgantus, it is a struggle for and use of power among nations. Now moving towards the next point, that is the international relations and international politics. Many writers have shown their inability in drawing a line of demarcation between international relations and international politics. See, पहले क्या था, पहले कोई बोल रहा था कि बाबा इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोनों सेम है, राइट. फिर बोला नहीं, सेम नहीं है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, राइट. फिर ऐसे बोला गया कि बाबा कुछ ना थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, थोड़ा बहुत सेम है, एज इन इट वॉज सेड लाइक दैट. तो फिर वो डिफरेंस क्या है, आई रीड आउट द डिफरेंस. Point wise we will go. First is the international politics. Its area is concerned to the study of only political relations among the nation state. Relations में it includes political as well as non-political kind of relations among nation. See, moving towards the second point, it primarily deals with the state to state level relations, official relations conducted by the authorized leaders of the state. Apart from the political relations, it also includes in its scope the people to people level relation. Therefore, the scope of international politics
is narrower and very much limited. But international relation में कैसा है यहाँ पे, but INRS has a much wider scope than that of the INP. Now international politics, mostly the study of INP employs descriptive and analytical method. Now relation में क्या है, it uses wider versatile and scientific methods in its study. International politics, it mainly deals with conflicting, oppositional or friendly relations between the nation. Cooperative as well as oppositional and all kinds of relations are included in this scope. Moving towards the next point, that is the international relation. See, मैं पहले 4-5 मिनट में आपका रिवीजन कराती हूँ, ताकि क्या है, रिवीजन करते रहेंगे तो मैं वापस एक बार बोलूँगी तो क्या है, आपके दिमाग में कुछ तो कुछ घुसेगा एंड यू विल रिमेंबर एटलीस्ट सम पॉइंट्स, ताकि एग्जाम के वक्त आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े एंड बहुत ज़्यादा आपको यू डोंट फॉल मच इन ट्रबल. इसलिए वो रिवीजन करवाया जा रहा है आपसे. अगर आपको नहीं करना है ऐसे, जस्ट मेल में, आई डू इट. नेक्स्ट इसमें वापस चालू कर देंगे, अपन आगे आगे पढ़ते जाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे कुछ भी. वॉट एवर यू गाइज विश. Now moving towards the next point, that is the international relations. Apart from political science, IR draws upon such diverse fields as economics, history, law, philosophy, geography, sociology, anthropology, psychology and cultural studies. See, apart from political science क्या है, international relations क्या है, इट ड्रॉज अपॉन अ सेवरल, अलग अलग फील्ड में भी काम करता है. लाइक इंटरनेशनल रिलेशन और किस किस फील्ड में इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लॉ, फिलोसॉफी, जोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड कल्चरल स्टडीज. इट इन्वॉल्व्स डाइवर्स रेंज ऑफ इशू इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ग्लोबलाइजेशन, स्टेट सोवेनिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, न्यूक्लियर proliferation, nationalism, economic development, global finance, terrorism, organized crime, human security, foreign interventionism and human rights. See, अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बोलो. सी, अपन बोल रहे हैं ना, ये रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, बहुत से फील्ड में इम्पोर्टेंट है, राइट, अलग अलग फील्ड में इम्पोर्टेंट है. बट ये लोग क्या बोल रहे हैं, और बहुत से चीज़ें, बहुत से इश्यूज़ में भी इंक्लूडिंग है, बट नॉट लिमिटेड टू. किससे किधर किधर तक ये लिमिटेड नहीं है. ग्लोबलाइजेशन, हाँ, स्टेट सोवियत, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल, न्यूक्लियर प्रोफिलाइजेशन, नेशनलिज्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल फिनेंस, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन सिक्योरिटी, फॉरेन इंटरवेंशनलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स. सिंस ग्लोबल डेवलपमेंट टच अपॉन द लाइफ्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल. सी, ग्लोबल डेवलपमेंट, अपन देखते हैं कि बाबा जापान में कितनी मस्त टेक्नोलॉजी है, तो अपने को भी लगता है ना कि बाबा अपने इंडिया में भी ऐसी कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी आए, राइट. इवन वी फील दैट कि बाबा इंडिया में भी कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी है, इवन वी मूव फॉरवर्ड एंड ऑल, राइट. तो ये क्या है, ग्लोबल डेवलपमेंट क्या है, हर किसी को अच्छा लगता है, राइट. आज अपने पूना में ही देखो, हर जगह कितने फ्लाईओवर हो गए हैं, राइट. इससे क्या है, फ्लाईओवर की वजह से कितना काम आसान हो गया है. लाइक मुझे ही देख लो, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो वो फ्लाईओवर का काम चालू भी नहीं हुआ था. ये जो कहाँ का फ्लाईओवर बोल रही हूँ मैं, ये कौन सा एरिया है वो, पीछे टिम्बर मार्केट से वगैरह फ्लाईओवर निकलता है ना अभी, वो जो मार्केट यार्ड से वगैरह निकलता है फ्लाईओवर, मार्केट यार्ड पोस्ट ऑफिस के आगे से फ्लाईओवर निकलता है, वो सीधा 7 लव्स चौक पे चला जाता है वहाँ तक. वो फ्लाईओवर से मेरा काम बहुत आसान हो गया. मेरे को अभी सॉरी, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं. बट हाँ, ये जो मार्केट यार्ड है ना, मेन मंडी, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है, अभी बहुत बढ़ चुका है. मतलब फ्लाईओवर से निकलना मेरे को फटाफट हो गया कॉलेज पहुँचना, बट जब रिटर्न में है ना, ये मार्केट यार्ड मंडी के उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. सो इट इज़ एन इशू, राइट. तो अपने को क्या लगता है, इधर भी एक फ्लाईओवर बनना चाहिए, राइट. तो एवरीवन वांट्स ग्लोबल डेवलपमेंट. द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कैन नॉट बी द सोल राइट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और डिप्लोमेट्स. सी,
इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे से रखना क्या सिर्फ ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर का ही काम है? अपना किसी का काम नहीं है ये। हाँ, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपना आपका कुछ काम नहीं है ये सिर्फ अच्छे से रिलेशन रखना, अच्छे से सब करने, इंटरनेशनल रिलेशन रखना है सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उनका ही काम है क्या? नहीं। इट बिकम्स रिलेवेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन लिविंग अंडर द सन। सी, जो भी इस दुनिया में रह रहा है, राइट, हर किसी ने इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। द इवोल्यूशन ऑफ दिस डिसिप्लिन which began after the First World War is still in the developing stage and its scope is expanding every day. See, अब ये जो इंटरनेशनल रिलेशन ये जो आया है ये क्या है? आफ्टर वर्ल्ड वॉर ये चालू हुआ ये कंसेप्ट, और ये क्या है? आज भी इट इज़ इन द डेवलपिंग स्टेज, राइट, आज भी वो डेवलप ही हो रहा है, येट इट हैज़ नॉट बीन डेवलप्ड कम्प्लीटली। और उसका स्कोप क्या है? रोज़ बाय रोज़ एक्सपैंड हो रहा है, रोज़ बाय रोज़ उसका एक्सपेंशन, नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं उसमें, एंड इट्स स्कोप इज़ गोइंग ऑन एक्सपैंडिंग एवरी डे. It becomes a challenge for academians and students to master the discipline in this fast changing world. See, it becomes a challenge. See, अभी आज के ज़माने में अपने कोई चैलेंज ही है ना इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि इसमें नए नए इतने टर्म्स एंड कंडीशंस आ रहे हैं, इतना नया नया आ रहा है कि बाबा आपको यही पढ़ने के लिए आज नया है, इसमें और नए नए रूल्स रेगुलेशन और नए टर्म, मतलब कितना नया है देखो। तो आज सबके लिए ये चैलेंज है कि इसको कितना पढ़ना चाहिए, कितना समझना है, कितने नए कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे, कितने नए कंसेप्ट इसमें ऐड होंगे एंड ऑल. इट्स रियली अ चैलेंजिंग टास्क फॉर एवरीवन राइट नाउ. नाउ we'll move towards the meaning. The term international was first used by Jeremy Bentham in the second half of the 19th century. See, the term international क्या है? It was first used by Jeremy Bentham in the second half of the 18th century. In the beginning, the term international relation was used to indicate the official relation between the Soviet state. See, in the beginning क्या है? सबसे पहले ये term कब यूज़ किया था? फॉर द रिलेशन बिटवीन द सोवियत स्टेट, मतलब स्टेट, सोवियत स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे रहने चाहिए, क्या रहने चाहिए, वो सब इंडिकेट करने के लिए ये इंटरनेशनल रिलेशन टर्म्स वगैरह पहले यूज़ किए थे. क्विंसी राइटर was the one who favored the use of interstate than international, as political societies were known as state. See, क्विंसी राइटर, हाँ, ही उसने बोला ये इंटरस्टेट होता है, इसको आप इंटरनेशनल रिलेशन नाम नहीं दे सकते, ये इंटरस्टेट है, और जो बियॉन्ड द कंट्रीज इट गोज ऑन देन इट वुड बी कॉल्ड एज एन इंटरनेशनल, एज पॉलिटिकल सोसाइटीज वर नोन एज स्टेट. द टर्म इंटरनेशनल रिलेशन हैज़ बीन इंटरप्रेटेड इन टू सेंसेस. सी, ये जो टर्म है इंटरनेशनल रिलेशंस, हाँ, कितने में? इट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड इन टू सेंस, ब्रॉडर सेंस एंड नैरो सेंस. वाव, सी, ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये भी दो हिस्सों में बटा है. जैसे इकोनॉमिक्स भी अपन बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज़ द माइक्रो एंड अदर वन इज़ द मैक्रो. हाँ, उसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन क्या हुए हैं, ये भी दो टर्म में डिवाइड हुए, एक वन इज़ इन द ब्रॉडर सेंस एंड अदर इन द नैरो सेंस. अभी इन द नैरो सेंस इट्स स्टडी इज कन्फर्म्ड टू दैट ऑफ द ऑफिशियल रिलेशंस conducted by the authorized leaders of the state only. See, in the narrow sense क्या है? Its study is confined to that of the official relation conducted by the authorized leader of the state only, right? मतलब state का जो head है, official relation सिर्फ उसके हाथ में ही रहेंगे और सिर्फ उसी ने देखना है, right? Now in the broad sense क्या है? It includes all intercourse among state and all movement of people, goods and idea across the national frontier. See, अभी नैरो ब्रॉड सेंस में क्या बोल रहे हैं? इट इंक्लूड्स ऑल इंटरकोर्स अमॉन्ग स्टेट.
लाइक स्टेट के अंदर क्या चल रहा है वो, और जो स्टेट के अंदर के लोगों के साथ ट्रेड चल रहा है, जो भी चल रहा है गुड्स आइडिया अक्रॉस द नेशनल फ्रंटियर. In other words, it includes the study of political as well as various kind of non-political relationship. See, in other words क्या बोल रहे हैं ये लोग? In other words, it includes the study of political as well as various kinds of non-political relationships. Its study includes official or political as well as non-political kind of relations. See, its study क्या है? Its study includes official or political as well as non-political kind of relation. It is the study of world community in transaction. See, ये क्या है? ये स्टडी ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी है, पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी को स्टडी करना है, इसलिए तो इसको नाम दिया है इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट. नाउ विल मूव टूवर्ड्स द डेफिनेशन. फॉलोइंग आर द definition of international relations. Hartman. International relations as a field of study is focused upon the process by which states adjust their national interest to those of other states. See, international relation क्या है? As a field of study, it focus upon the process by which state adjust their national interest to those of other state. ये किस पे फोकस करता है कि बाबा स्टेट अपना किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट पे अदर स्टेट के साथ फोकस करता है, किस तरह से काम करता है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड डेफिनेशन. सेकेंड डेफिनेशन इज ऑफ क्विंसी राइटर. इंटरनेशनल रिलेशंस आर द रिलेशन बिटवीन ग्रुप ऑफ मेजर इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड at any period of history, and particularly relation among territorial organized nation state which today are of such importance. See, international relations क्या है? Are the relation between group of major importance. अभी ये क्या है? ये जो ग्रुप्स वगैरह हैं उनके साथ अपने वर्ल्ड के साथ कैसे रिलेशन रहने चाहिए, क्या रहने चाहिए. हाँ, और पहले अपने स्टेट में अच्छे से रिलेशन चाहिए एक दूसरे के. हर स्टेट में जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तभी तो बाकी सब स्टेट के साथ आगे बढ़ेंगे. और जब अपने नेशन में ही सबके साथ अपने अच्छे रिलेशन है स्टेट बाय स्टेट, तो क्या है अपने आप नेशन का भी अच्छा रिलेशन होगा ना बाकी सबके साथ. सो इट वुड गो ऑन दैट वे. सी देयर आर टू डेफिनेशन. एक तो हर्टमैन का है, एकदम सिंपल है उसका. तो international relations as a field of study is focused upon the process by which states adjust their national interest to those of other states. Quincy writer. International relations are the relation between group of major importance in the life of the world at any period of history, and particularly relation among territorial organized nation states which today are of such importance. Now these were the two definitions. Moving towards the next point, nature of international relation. Due to increasing human activities, the relation among various states have been changing. See, अभी ह्यूमन एक्टिविटी अपनी बढ़ गई है. पहले क्या है, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली रहती थी तो फैमिली में सब हो जाता था. अब क्या है, अब अपने को फ्रेंड्स की भी उतनी ज़रूरत है, रिलेशंस की भी उतनी ज़रूरत है. तो क्या है, due to increasing human activity, the relation among various states have been changing, and due to this continuous change in international relation, the meaning, nature and the scope of international relation have been changing. See, अभी क्या हो गया है, अभी जैसे ह्यूमन एक्टिविटी बदल गई है, हाँ सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसी वजह से क्या हो गया है, इंटरनेशनल रिलेशन वो भी चेंज हो गए. उसका मीनिंग, स्कोप, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन चेंजिंग, राइट. बराबर है ना. अगर इंसान चेंज होगा तो धीरे धीरे सब कुछ चेंज होगा. हाँ, सब कुछ. आज अपन देखो कौन से सेंचुरी में जी रहे हैं. टुडे वी आर लिविंग इन द 21st century, राइट. अभी पहले ज़माने में क्या था, आज के और ग्रैंड पेरेंट्स हाउ दे लिव्ड देयर लाइफ एंड ऑल, और आज आप क्या ज़िंदगी जी रहे हो. आज आपके पास मोबाइल टैब सब इतना है. पहले उनके पास मोबाइल टैब था क्या, पूछो आपके
वो लोग दिन भर खेलते थे, गॉसिप करते थे, बहुत काम करते थे वो लोग। आज अपने को उतना काम होता है क्या? लिटरली वो लोग आटा वाटा सारा घर पे ही पीसते थे, दळण वगैरह सगळं घरी करायचे, और वो घी भी सब घर पे निकालते थे, सब कुछ घर पे करते थे। वो पापड़ बनाना एंड ऑल एवरीथिंग दे टू डू एट होम। आज कोई करता है क्या ये सब घर पे काम? नहीं करता। आज सब रेडीमेड मिल जाता है तो सब रेडीमेड ले आ जाते हैं। बोलते कि कौन इतना काम करेगा, किसके पास इतना टाइम है, राइट। तो ह्यूमन एक्टिविटी चेंज हो गई है। पहले लेडीज़ लोग घर से बाहर काम करने के लिए जाती थी क्या? नहीं, हार्डली दिस पीपल लेडीज़ यूज टू गो। आज आप देखो पेट्रोल पंप पे, टोल प्लाजा पे, इवन देयर यू विल फाइंड वुमेन ओनली, राइट। आज वुमेन हर फील्ड में आगे है, राइट। तो ह्यूमन एक्टिविटी चेंज हो गई, इसलिए नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन भी चेंज हो गया है। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट नेचर ऑफ इंटरनेशनल relation, such as evolution of new nation, technological development, nuclear research, rise of multipolar world, emergence of new order, non-state organization, global problem, so and so forth. See, there are many factors. अभी बहुत से फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं नेचर को, जैसे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, न्यू ऑर्डर आ गया, या नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल प्रॉब्लम, सो एंड सो फोर्थ। ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सी, ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, सी आज इंटरनेशनल रिलेशन क्या हो गया है? चेंज हो रहा है। तो क्या हो गया? इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। लाइक अभी इंटरनेशनल रिलेशन एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। However, these are the following important points explaining the nature of international relation. कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। No single definition. International relations have no single definition. See, international relation का क्या है? एक single definition है क्या? नहीं है। Unfortunately, till date, no universal accepted definition of international relation has been coined because of its continuous changing nature. See, एक भी ऐसे single definition हुआ ही नहीं है उसका। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, जैसे जैसे नेचर बदल रहा है वैसे वैसे ये रिलेशंस भी बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसकी वजह से वी हैव नॉट सम अप टू एनी ऑफ द सिंगल डेफिनेशन, राइट। डेफिनेशन यानी क्या? कुछ तो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोलते हैं, लाइक पर्टिकुलर उसी चीज़ का डेफिनेशन रहता है, बट यहाँ पे वैसे नहीं हो रहा है। क्यों? इंटरनेशनल रिलेशंस क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं बार बार। Then operates in anarchical system. International relation operates in an anarchical system. There is no single organization to regulate among state. See, अभी हर स्टेट के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे देखो अभी कोविड की वजह से क्या हुआ है, महाराष्ट्र में स्कूल्स अब तक बहुत से प्लेसेस पे स्कूल्स ओपन नहीं हुई है, बट कर्नाटक में वगैरह क्या हो गया है, स्कूल्स वगैरह सब ओपन हो चुकी है, राइट। बट महाराष्ट्र में हुई क्या? अच्छा, महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ जगहों पे स्कूल्स ओपन हुई है, बट पूना में हुई है क्या? नहीं हुई। और पूना में होगी भी नहीं, 2-3 महीना तो बच्चों का स्कूल नहीं ओपन होने वाला है। हुआ तो भी अभी फ़िलहाल तो 8, 9, 10, 11, 12 चालू हुए हैं, राइट। अभी मंडे से परमिशन हुई है ये सब चालू होने की। सीनियर कॉलेज की परमिशन अब तक नहीं आई है, वो दिवाली के बाद होगा सीनियर कॉलेज चालू, राइट। बीकॉम वगैरह BA वगैरह दिवाली के बाद चालू होगा, राइट, क्योंकि उसका परमिशन अब तक नहीं आया है बीकॉम BA वालों के लिए। हाँ, तो क्या है, सी एक ऐसे कुछ पर्टिकुलर है क्या जो सब कुछ रेगुलेट करे? नहीं है, हर किसी का यहाँ पे अलग अलग सिस्टम है। Michael Nicholson writes, international relation is the study of aspect of anarchy, though an anarchy which is not necessarily chaotic. तो माइकल निकल्सन वो क्या बोलता है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? इज द स्टडी ऑफ एस्पेक्ट ऑफ अनार्ची, दो एन अनार्ची विच इज़ नॉट नेसेसरीली chaotic. Moving towards the interdisciplinary subject. International relations are interdisciplinary subject. In 1998,
In 1998, UNESCO mentioned international relations as a subject field of political science because scholars of international relation analysis political relation, economic relation, social relation and cultural relation etc. politically. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, दे आर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. फिर 98 में यूनेस्को ने क्या बोला, ये इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, दिस आर सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस. क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन क्या क्या देखता है, पॉलिटिकल रिलेशन देखता है, इकोनॉमिक रिलेशन देखता है, सोशल रिलेशन देखता है, कल्चरल रिलेशंस देखता है एक्सेट्रा. देन कंसर्न विथ ग्लोबल इशू. इंटरनेशनल रिलेशंस deals with key issues which concern public global interest. Goldstein and Pavlis House in his book. See, international relations क्या है, it deals with key issues which concern public global interest. Goldstein and Pavlis House in his book International Relations writes, international relations revolves around one key problem. अब international क्या है, relations क्या है, it revolves around one key problem. How to balance interest of international state with the global state. See, हर किसी के पास ये प्रॉब्लम है कि बाबा अपने इंटरनेशनल स्टेट और ग्लोबल इंटरेस्ट ये अपन कैसे बैलेंस करें, कैसे बैलेंस हो सकते हैं, ये आज भी एक इशू चालू है और ये इशू एवरी कंट्री इज़ फेसिंग, राइट. तो उन्होंने एक बुक में लिखा है इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि बाबा writes international relation revolves around one key problem, how to balance interest of international state with the global interest. Scope of international relation will start in the next lecture. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.